My lovely students, welcome to Mathological. This is a very important session from the topic of functions and graphs. And our agenda for this session will be to find out range of the function. We have already discussed how to find out the domain of a function in the previous session. So if you have not checked out that, then make sure to check out that session first and then come back to this session. Okay, so we'll be understanding the concept of range of the function, how to calculate range of the function. And since finding out range of the function is slightly trickier than finding out domain, so we'll also be applying one method to convert one problem to the other. Okay, start karte hain session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon to get regular updates. You can also join Telegram channel Mathological or can join the WhatsApp channel and can message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or concerns regarding your preparation. Start karte hain apna session. So basically, what is range of a function? As we have understood by now that if there is a function f and that function f is defined from a set A to set B, set A, this is called domain set. Set B, this is called codomain set. And values inside the codomain set that we get as output of the function when we are putting the domain elements, those particular values, the set of those particular output values, that is called range. So our range is always a subset of codomain. And basically range is set of all output values that fx can take. क्लियर है? बाकी बातें एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना. So the first question, what is the range of the linear function fx is equal to 2x plus 5? So अगर हमारा सिंपल लेट अस से क्वेश्चन होता कि if fx is equal to x, तो रेंज हमारा क्या होगा? In such a case, if fx is equal to x, तो डोमेन क्या है हमारा? First of all, let us find out the domain. So domain क्या होगा? क्योंकि fx is equal to x, तो x can take any values. X can be 0, x can be a positive value, x can be a negative value. All values are fine. So x can be any real number. So our domain in this case will be x element of R. और अगर x पॉजिटिव है तो fx भी तो हमारा x के ही बराबर है. Isn't it so? So if x is 0, fx will also be equal to 0. If x is positive, fx will also be positive. X is negative, fx will also be negative. और जो वैल्यू x का होगा वही सेम वैल्यू fx का आएगा. यानी कि in such a case, if x is a real number, then fx will also be a real number and can take all the values from minus infinity to plus infinity, because x is also taking all the values from minus infinity to plus infinity. Fx is equal to x only. So our range will also be, our fx will also be a real number, any real number from minus infinity to plus infinity. तो range आ जाएगा हमारा from minus infinity to plus infinity or a linear function. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? और ग्राफ से भी ये बात समझ में आती है कि for fx is equal to x, our graph will be something like this. It will be going through origin, and this is a line extending to minus infinity, from minus infinity to plus infinity. So all the values it will be taking from minus infinity to plus infinity. Isn't it so? क्लियर है? ठीक है. रेंज के लिए हम कहाँ फोकस करेंगे? वाई एक्सिस फोकस करेंगे. तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी and this side, this is going towards minus infinity. So the line is taking all the values from plus infinity to minus infinity. Our range will be containing all the real numbers in this case. Simple फंडा है. ठीक है. अब क्वेश्चन हमसे पूछा fx is equal to 2x plus 5. तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या होगा? Again, x can take all the values, all the real numbers. So our domain in this case will be all real numbers. 2x plus 5 is our function. ठीक है. So if function is 2x plus 5, तो 2x will also be, if x is equal to 0, 2x will also be 0, or 2x plus 5 will be equal to 5 in that case. So if x is 0, 2x plus 5 will be equal to 5. If x is equal to 1, 2x will be 2, 2x plus 5 will be equal to 7. Okay. If x is 2, 2x plus 5 will be equal to 9, and so on. So if x is tending towards infinity, 2x plus 5 will also be tending towards infinity. If x is, let us say, negative, -1, so 2x plus 5 will be 3. If x is -3, so 2x plus 5 will be -6 plus 5, यानी कि -1, and so on. So if x is tending towards minus infinity, 2x plus 5 will also be tending towards minus infinity, यानी it will be taking all values from minus infinity to plus infinity. So in this case, our range will be
y कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट अवे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, गिवन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 व्हाट विल बी इट्स रेंज। तो अगर लेट अस से हमारा क्वेश्चन होता कि सम फंक्शन जी एक्स इज देयर एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो रेंज क्या होगा? अगेन एक्स स्क्वायर इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन और रेंज विल बी एक्स कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, सारी वैल्यूज ले सकता है। सो डोमेन इज एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज ले सकता है। और इस केस में एक्स स्क्वायर क्या होगा? इफ एक्स इज लेस देन जीरो, इफ एक्स इज नेगेटिव, इन दैट केस एक्स स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, then x square will again be positive, यानी कि x square will either be positive or equal to zero. X square in all cases will be greater than equal to zero, as we already understand. Is that it? एक्स स्क्वायर हमारा ऑलरेडी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बट क्वेश्चन में हमें एफ एक्स में दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन सच ए केस माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे, इनक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 4, और फिर 4 ऐड कर दो बोथ साइड्स में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, this will always be less than equal to 0 plus 4, which is equal to 4. So our function will always be less than equal to 4. तो रेंज हमारा आ जाएगा, इट कैन टेक ऑल वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 4, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा बिकॉज इट कैन टेक वैल्यू इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आंसर विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 4, ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ये तो जनरल बात होगी हमारी फॉर माइनस स्क्वायर प्लस 4, बट अगर इन जनरल बात करें, लेट अस से हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। दो तरह का ग्राफ बन सकता है, ऑलरेडी वी अंडरस्टूड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईदर द ग्राफ विल बी लाइक अ अपवर्ड्स यू और द ग्राफ विल बी लाइक अ डाउनवर्ड्स यू। इफ द ग्राफ इज लाइक अ अपवर्ड्स यू, किस केस में होगा? व्हेन आवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज पॉजिटिव, तो ए कैन ईदर बी ग्रेटर देन जीरो और ए कैन बी लेस देन जीरो, इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, दो ही केसेस हैं। बिकॉज अगर ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब तो फिर लीनियर फंक्शन ही हो गया। So either coefficient of x square will be, leading coefficient will be positive or it can be negative. If the coefficient is positive, in such a case, our graph will be like a upward U. And if the coefficient is negative, graph will be like a downward U. In the first scenario, if the coefficient is positive, so our graph, our fx value is tending towards plus infinity. But there is a minimum value, there is a minimum that will be existing, minima that is existing, minimum value is existing, and that minimum value will be at x equal to minus b by 2a, and value of fx minimum will be minus capital D by 4a, where D is the discriminant. In such a case, if a is greater than 0, our fx can take all values from minus d by 4a to plus infinity. So in such a case, if a is greater than 0, our range of fx will be from minus d by 4a, including minus d by 4a, to infinity. In the second scenario, a maximum value will exist, and the graph is a downward U going towards minus infinity. So in this case, the maximum value will be existing at minus b by 2a, and the value will be minus capital D by 4a. बट ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इस केस में, और मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज इन दिस केस हमारा रेंज विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। क्या ये क्लियर है? तो ये दो केसेस बनेंगे हमारे इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, एज इन दिस केस, भाई यहाँ पे हमारा क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो a इज इक्वल टू माइनस 1।
b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 4. तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? ग्राफ विल बी डाउनवर्ड्स with a maxima, and that maximum value will be at, since b is equal to 0, so this will be at 0, at x equal to 0. So at x equal to 0, value will be equal to 4, and then minus infinity. So minus infinity to 4 will be our answer, which is option C. Okay, next question. What is the range of the function gx is equal to mod of x minus 3? If gx is equal to mod of x minus 3, so what will be our range? So mod of x is always non-negative. Either it is 0 or it is positive. So if x is equal to 0, then mod of x is also equal to 0. Modulus of x is also equal to 0, because modulus of x is basically absolute value of x. Okay, with a positive sign. So if x is 0, mod of x is also 0. If x is less than 0, then mod of x will be positive. And if x is greater than 0, then mod of x will still be positive. ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और डोमेन क्या होगा यहाँ पे? x कैन टेक एनी रियल वैल्यू. तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, तो बोथ साइड्स में सब्ट्रैक्ट कर दो इनइक्वालिटी में 3. तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. So basically our gx will be greater than equal to minus 3, and hence our range in this case, this will be from minus infinity, एक सेकेंड है, greater than equal to minus 3. So minus 3 is the smallest value, minimum value. It will be from minus 3 to plus infinity. Option D आंसर आ जाएगा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number 4. A function is defined by the set of ordered pairs minus 2, 3, minus 1, 5, 0, 7, 1, 9. So what is the range of this function? Now in this case हमें ordered pairs given है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड फ्रॉम सेट A to सेट B. और रेंज में हमारी सेकेंड वैल्यूज जो है, दीज आर द आउटपुट वैल्यूज 3, 5, 7 एंड 9. तो अवर रेंज का फंक्शन विल बी कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स 3, 5, 7 एंड 9. आंसर विल बी ऑप्शन बी. और डोमेन हो जाएगा -2, -1, 0 एंड 1. ओके, next, given the function hx is equal to root of x minus 2, what will be the range of this function? hx is equal to root of x minus 2. What will be the domain of this function? Since under the square root we have the value x minus 2, so value inside the square root must be greater than equal to 0, must be non-negative, because negative value का square root define नहीं कर पाएंगे. ठीक है, so x minus 2 has to be greater than equal to 0. This has to be greater than equal to 0, यानी कि x will be greater than equal to 2. अब जब वैल्यूज पुट करोगे, सिंस दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, so it will always be giving a value that is non-negative, either 0 or positive. So it will always be giving value greater than equal to 0. So root of x minus 2 will always be greater than equal to 0, because this is a square root function. So minimum value will be 0 at x equal to 2, और फिर बाकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आएंगी. तो दिस विल बी फ्रॉम 0 to infinity. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. ओके, now next case. Next is, what is the range of the function fx is equal to 1 by x plus 3? So if fx is 1 by x plus 3, what will be range of this function? Now again in this case domain क्या होगा सबसे पहले बताओ. Since fx is 1 by x plus 3 और x डिनोमिनेटर में आ रहा है, so denominator कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x should not be equal to 0. So basically x can take all real values except 0. x 0 नहीं हो पाएगा, 0 के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, 0 के अलावा बाकी वैल्यूज लेगा तो कहाँ पे हमारी वैल्यूज पहुंचेंगी? सिंस 1 बाई एक्स प्लस 3 हो रहा है, पहले 1 बाई एक्स की बात कर लेते हैं, फिर 3 को सेपरेटली देख लेंगे. ठीक है, पहले 1 बाई एक्स के लिए बात कर लेते हैं, फिर 3 को सेपरेटली देख लेंगे. ओके, सो लेट अस से इफ x इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 बाई एक्स विल ऑल्सो बी पॉजिटिव. अच्छा, इफ x इज नेगेटिव, 1 बाई एक्स भी तो नेगेटिव होगा. 0x हो नहीं सकता, तो 1 बाई एक्स तो 0 पे तो अनडिफाइंड होगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो 0 होना पॉसिबल ही नहीं है इस केस. दो ही केसेस बनेंगे. फिर हमें देखना है
पॉजिटिव नेगेटिव तो हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, बट कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अब ये चेकआउट करना पड़ेगा. सो लेट अस से इफ अवर एक्स वैल्यू इज, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू 1, 1 by x this will be equal to 1. At x equal to minus 1, 1 by x this will be equal to minus 1. ठीक है. इफ x is less than 1, यानी कि इफ x is between 0 and 1, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में है. सो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि x is लेटेस्ट से 0.5, तो 1 upon 0.5 this will be equal to 2. So if x is less than 1 between 0 and 1, so our 1 by x will be positive, but the value will be greater than 1. This will be greater than 1. And if x is greater than 1, in that case for example हमने लिया 2, तो 1 by 2 will be equal to 0.5, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 by x will be less than 1. This you can observe. ठीक है. Similarly, if x is let us say between -1 and 0, यानी कि x is negative but greater than -1. So if x is negative but greater than -1, for example हमने लिया 1 upon -0.5, so this will be -2. यानी कि in such a case 1 by x will be less than -1. भाई -2 is less than -1. ठीक है, isn't it so? और यही सेम हमने लिया इफ x is basically less than -1, इन सच ए केस फॉर एग्जाम्पल लिया हमने -2, तो 1 upon -2 is equal to -0.5, तो इन सच ए केस हमारा 1 by x will be greater than -1. But definitely since 1 by x नेगेटिव होगा, so this will be greater than -1, but 0 will be greater than 1 by x, जो कि फर्स्ट केस में जैसे हमारा 1 by x is greater than 1, सेकंड से our 1 by x is between 0 and 1. So basically 1 by x will be taking all the real values from -infinity to plus infinity except 0 नहीं होगा कभी भी. 1 by x कभी भी 0 नहीं हो पाएगा. So 1 by x will be taking all the real values -0. इज दिस क्लियर? क्या ये समझ पा रहे हो? तो हमने चारों केसेस जो हमारे पॉसिबल थे, x बिटवीन 0 and 1, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 तो देखा ही है, -1 भी देखा, x बिटवीन -1 and 0 एंड x लेस देन -1, सारे के सारे केसेस को देखा और यही पाया कि 1 by x इज बिटवीन टेकिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट कैन नॉट बी 0. इट कैन नॉट बी 0, बट हमें चाहिए 1 by x + 3 के लिए रेंज चाहिए, तो बस 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो 1 by x + 3 के लिए स्टोरी क्या बनेगा? दैट विल ऑल्सो बी टेकिंग ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 नहीं ले रहा था 1 by x, 3 ऐड किया है, सो दिस विल नॉट बी टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 3. ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो एक्सेप्ट 3 ऑल द अदर वैल्यूज इट विल बी टेकिंग, सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा. बट इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ी, तो ये मेथड हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया और यहाँ पे हमसे गलती भी हो सकता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कुड हैव मिस्ड कि 0 से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेगा, हालांकि ये सिंपल फंक्शन है, बट ऐसे केसेस में हमारे पास एक बेटर अप्रोच होना चाहिए. सो वी हैव अ बेटर अप्रोच टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, बट वहाँ पे भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, इसलिए हमने पहला मेथड सीखा. ठीक है, कि हमने डोमेन के थ्रू, डोमेन से एनालाइज करके अपना रेंज कैसे निकालना है किसी फंक्शन का, ये पहला मेथड हमने समझा. अब सेकंड मेथड या फिर जो हमारा प्रॉपर मेथड है टू फाइंड आउट रेंज, उसको समझते हैं. ठीक है, बट वहाँ पे भी हमें चीज़ों को कॉशियस रहना है, जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, और लास्ट में ये इंश्योर जरूर करना है कि वट एवर वैल्यूज वी आर गेटिंग, दोज वैल्यूज आर फिटिंग अवर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अपने प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, अपना मेथड समझते हैं. सो वट एवर फंक्शन हैज़ बिन गिवन, whatever function has been defined, we'll be writing that function equal to y. The first step is writing y is equal to fx. Second step will be to convert. ठीक है, instead of writing y is equal to fx, हम सारे के सारे x को एक साइड लेके आ जाएंगे और we'll be writing the equation in terms of y. ठीक है, we'll be converting that in terms of y. So basically we'll be expressing x in terms of y. That will be our second step. Okay, and then we'll be finding out values of y for which x is defined. Third step, values of y for which x is defined. And last but most important step, check that all values satisfy the initial function. Always ensure that values satisfy the initial function.
नाउ लेट अस अप्लाई दैट मेथड. ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा कि वी रोट y इज इक्वल टू एफ एक्स. सो नाउ y इज इक्वल टू 1/x+3. नाउ 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले, y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1/x. ओके, तो सिंस दिस इज अ इक्वालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं. सो x इंटू वाई माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 and hence our function will be x equal to 1 upon y minus 3. So now we have written x in terms of y. ठीक है, उल्टा कर दिया, x को अब हमने in terms of y लिख दिया. जैसे ही हमने x को in terms of y लिख दिया तो अब हमें फोकस करना है टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड. डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? डिफाइंड इंप्लाइज दैट x इज रियल. x has to be a real value, and if x is getting a real value, then definitely x is defined for those values of y. अब if 1 upon y minus 3 है, we need to find out those values of y for which x is defined. तो y की कुछ भी वैल्यू लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 10 लो, 15 लो, 0 भी ले लो, नेगेटिव वैल्यू भी लो, सब चलेगा एक्सेप्ट दिस डिनोमिनेटर, सिंस y is in the denominator, so y minus 3 कैन नॉट बी 0. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फॉर दिस फंक्शन, ये हमारा नया फंक्शन हो गया एक तरह से समझ लो. This is, let us say, a new function f1. A new function f1 of y. ठीक है, तो f1 y इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 3. और इस केस में हम डोमेन बता रहे हैं, डोमेन चेक कर रहे हैं, डोमेन इनपुट वैल्यूज, y हमारा अब इनपुट हो गया है. सो डोमेन निकालना आसान है हमारे लिए. ठीक है, सो वी आर इंश्योरिंग कि डोमेन क्या होगा. इस केस में डोमेन हमारा क्या आएगा, y माइनस 3 विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि y विल नॉट बी इक्वल टू 3. y कैन टेक ऑल द अदर वैल्यूज. सो बेसिकली y विल बी टेकिंग all real values except 3, and this should be our answer. This should be our answer. But last step important है, ये भी इंश्योर करना कि always check that value satisfy the initial function. इनिशियल फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल 1/x+3. तो क्या हमारे इनिशियल फंक्शन पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो y विल बी टेकिंग ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इस केस में आंसर आ जाएगा. क्या ये समझ पा रहे हो? तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? बट लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट आगे एक दो क्वेश्चंस में देखेंगे जहाँ पे कि हमें सॉल्यूशन में जो लास्ट में वैल्यूज ऑफ वाई मिलेगा, उनमें से कुछ वैल्यूज के लिए आवर इनिशियल फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, आवर इनिशियल फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स माइनस 1. एफ एक्स इक्वल टू द पावर एक्स माइनस 1, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? तो पहले मेथड 1 से करते हैं, देन मेथड 2 को देखेंगे. 2 टू द पावर एक्स. नाउ वेदर एक्स इज 0, can be 0, can be a positive value, can be a negative value, but for all values of x, 2 to the power x will always be positive. Let us say 2 to the power 1 किया हमने, that is equal to 2. 2 to the power 0 किया, that is equal to 1. And 2 to the power minus 1 किया, that will be 1/2. Less than 1 है, because 2 to the power 0 पे 1 आ रही है वैल्यू. So any negative value of the power that will be giving us a value that is less than 1, but that value at the same time will be greater than 0. So 2 to the power x will always be positive. This will always be positive. This will never be 0 and never be less than 0. ना तो 0 होगा ना 0 से कम होगा. It will always be a positive value. 2 to the power x will always be greater than equal to 0. Greater than 0, not equal to. बट हमारा फंक्शन है 2 to the power x minus 1 का. 2 to the power x minus 1 subtract minus 1 from 0. So this will always be greater than minus 1. So our fx will be greater than minus 1 always. And hence range will be from minus 1 to infinity. Option C will be the answer. ठीक है, जब ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे 2 to the power x या इन जनरल a to the power x का, जहाँ पे कि a हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ग्राफ भी डिस्कस करेंगे. और दो केसेस बनेंगे हमारे, व्हेन a इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ईदर a विल बी बिटवीन 0 and 1 और a विल बी ग्रेटर देन 1. ओके, बट क्या यहाँ पे अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमारा इस फंक्शन के लिए रेंज आ जाएगा दैट एफ एक्स विल बी टेकिंग एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन माइनस 1. ओके, अब मेथड 2 अप्लाई करते हैं. जो भी हमने सीखा कि एफ एक्स को y लिखते हैं, फिर y लिख के सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाते हैं और फिर x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं y को. ओके, सो सेकेंड मेथड, मेथड नंबर 2.
y इज इक्वल टू 2 टू पावर x माइनस 1, तो माइनस 1 रेफरेंस साइड में लेके चले y प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 2 टू पावर x। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 टू पावर x है हमारे पास। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक्सपोनेंशियल का उल्टा फंक्शन क्या होगा? दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, सो वी कैन टेक लॉग और वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द लॉग। तो ईदर वी कैन टेक लॉग और वी कैन अप्लाई डेफिनेशन ऑफ द लॉग। तो लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ y प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द पावर x। और सिंप्लीफाई करना है तो बेस क्या लें? यहाँ पे बेस कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट हमारा काम कब कब बनेगा? जबकि हम बेस 2 ले लें, बिकॉज जैसे ही हम बेस 2 ले लेंगे तो 2 टू पावर x ऑन द बेस 2 विल गिव अस लॉग वैल्यू क्या आएगा? लॉग वैल्यू विल बी इक्वल टू x, दिस विल बी इक्वल टू x, log of 2 to the power x on the base 2 that will be equal to x। यानी कि अब हमारा फंक्शन आ गया x is equal to log of y plus 1 on the base 2। we have represented y and constants in terms of x। अभी जो नया फंक्शन मिला है हमें, इसका डोमेन निकालते हैं। कब डिफाइंड होगा? x के वैल्यूज कब डिफाइंड होगा? x will be defined if this log is defined। so we have to find out for what values this log will be defined, and log will be defined if our base is positive value, which is 2, which is positive, and then our argument is also a positive value, यानी कि y plus 1 has to be greater than 0। that implies that y has to be greater than minus 1। if y is greater than minus 1 our x will be defined, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि y should be greater than minus 1। इज दैट क्लियर? बट लास्ट पार्ट हमें इंश्योर जरूर करना है कि क्या हमारा इनिशियल डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिंस we are checking that 2 to power x is always positive, 2 to power x minus 1, that will always be greater than minus 1, so yes, that is correct। our answer will be option C। clear? okay, but as you've understood, in most cases अगर हमें सिंपल फंडा आ रहा है तो दिस मेथड इज मच ईजियर फॉर द सिंपल फंक्शन, सिंपल क्वेश्चंस। जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी होंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली हमें सेकंड मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, बट फॉर द सिंपल एक्सप्रेशंस, सिंपल इक्वेशन, सिंपल फंक्शंस, द फर्स्ट मेथड इज वेरी इजी once you've been comfortable with the functions with their ranges, with the simple function का ranges। okay, next question देखते हैं। next is for the function fx is equal to root of 4 minus x square, what will be the value of the range? root of 4 minus x square, now again root of 4 minus x square है तो this will definitely always be greater than equal to 0, ये तो पता है हमको, ठीक है। this will always be greater than equal to 0, और जैसे ही ये बात पता है तो हमें पता है ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा। सेकेंडली मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? what can be the maximum value? because this is root of 4 minus x square, डोमेन क्या होगा? Now since value inside the root has to be either positive or 0, so it has to be 4 minus x square has to be greater than equal to 0, यानी कि x square has to be less than equal to 4। so x can take any value from minus 2 to 2, isn't it so? क्या है क्लियर? और एक्स स्क्वायर क्योंकि अपने आप में दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर विल बी टेकिंग वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 4। भाई 0 से बड़ा तो हमेशा ही होगा, या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और 4 से छोटा भी होना है, बिकॉज इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 इन सच केस 4 माइनस स्क्वायर विल बी लेस देन 0, दैट विल बी नेगेटिव, तो स्क्वायर रूट हमारा डिफाइन नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर विल बी टेकिंग ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 4 इन सच केस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या पहले माइनस एक्स स्क्वायर विल बी बिटवीन माइनस 4 एंड 0, इनइक्वालिटी हमारा स्विच हो गया, और 4 माइनस स्क्वायर विल बी बिटवीन 4 माइनस 4 यानी कि 0 एंड 4, तो स्क्वायर रूट विल बी बिटवीन 0 एंड 2, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बिटवीन 0 एंड 2 द आंसर विल बी। क्या ये क्लियर? अभी बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो मेथड नंबर 2 वी आर राइटिंग y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करते ही दिस बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 4 माइनस y स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर। Now we have to find out those values of y for which x will be defined। तो x कब डिफाइंड होगा? when 4 minus x square
will be positive or 0, greater than equal to 0, यानी कि y square has to be less than equal to 4, and that is only possible when y is between -2 and 2. तो सेकंड मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, y इक्वल टू y इज एनी वैल्यू बिटवीन -2 and 2. बट अगेन लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा इनिशियल डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. तो इनिशियल डेफिनेशन क्या है कि y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. तो बाय दैट लॉजिक y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो वैल्यूज बिटवीन -2 and 0 वो तो प्रॉब्लमेटिक है, वो तो नहीं हो पाएंगी. ठीक है, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना है और बिटवीन -2 and 2 भी होना है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट y शुड बी बिटवीन 0 and 2. The final answer would be y has to be between 0 and 2. Last step is most important अगर सेकंड मेथड में अप्लाई कर रहे हैं तो. दैट इज वाई अगर हमारे पास पहला मेथड हमें अच्छे से आ रहा है और सिंपल क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे फर्स्ट मेथड सही करेंगे ताकि हमारे गलती ना हो हमसे. ऑप्शन बी हम ना मार्क कर दें कि लास्ट स्टेप को, और वैसे भी लास्ट स्टेप को मिस करना ही नहीं है कभी भी. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2. दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस 2. ठीक है, नॉट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2. दिस इज डिफरेंट. ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं. मोस्टली लोगों को पता है बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2. ओके, so what will be range of this function? Now sin of x minimum value is -1, maximum value is +1, and it can take all values between -1 and 1. Basically sin of x is always between -1 and 1. बट हमारा फंक्शन है sin of x plus 2, तो add 2 in this inequality. जैसे ही 2 ऐड करोगे 2 - 1 will be less than equal to sin of x plus 2 will be less than equal to 1 plus 2, यानी कि it will be between 1 and 3. Sin of x plus 2 will be between 1 and 3. So our answer will be option D. Same for cos x. Range of cos x function is also between -1 and 1. And tan x is from -infinity to infinity, plus infinity. ठीक है, just in case if the function was simpler, much easier, gx if let us say was equal to sin of x plus 2. तो sin of x हो या फिर sin of x plus 2, this sin of x plus 2, this will be always between -1 and 1. तो हमारा आंसर होता from -1 to +1. ओके, कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द पीस वाइज फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0. अगर एक्स हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इन दैट केस एक्स प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. और सेकंड केस में व्हेन एक्स इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इन दैट केस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दो केसेस गिवन है हमें. फर्स्ट केस व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. नाउ सिंस एक्स इज नेगेटिव तो x प्लस 1 क्या होगा, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 भी लेस देन 0 प्लस 1 यानी कि लेस देन 1. तो बेसिकली x प्लस 1 विल बी फ्रॉम -infinity to 1. सेकंड सिनेरियो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या वैल्यूज लेगा, सारी की सारी वैल्यूज लेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. और 0 पे भी हमारा एक्स स्क्वायर ही वैल्यू आ रहा है, तो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो फर्स्ट केस में वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन आर फ्रॉम -infinity to 1. इन सेकंड केस दिस इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो हमारी सारी वैल्यूज बेसिकली ले रहा है -infinity से लेकर 1 तक ले रहा है पहले केस में. सेकंड केस में फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ऑल द वैल्यूज आर कवर्ड. तो बेसिकली अवर एफएक्स विल बी टेकिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम -infinity to +infinity. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What is the range of the inverse function of fx, and if fx is equal to cube root of x plus 2? Range of inverse function of fx. If there is a function f defined from set A to set B, वैसे हमने इनवर्स फंक्शन डिस्कस नहीं किया है, बट जो हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं वहां पे हम बेसिकली इनवर्स फंक्शन का ही डोमेन निकाल रहे होते हैं. ठीक है, सो इफ f इज अ सेट डिफाइंड फ्रॉम सेट A, f is a function defined from set A to set B, f of inverse is our inverse function that is defined from set B to set A. So for f function, A is domain, B is codomain.
But for f inverse, B is domain and A is कोडोमेन. ठीक है. सो इनवर्स फंक्शन का रेंज निकालना है, रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, और रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन विल बी बेसिकली डोमेन ऑफ द इनिशियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स. ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स. क्या क्लियर है? तो बस हमें एफ एक्स का डोमेन निकालना है. क्या आएगा डोमेन? क्यूब रूट ऑफ एक्स पे फोकस करो. तो क्यूब रूट ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. तो दिस विल बी अवर रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन. आंसर आ जाएगा हमारा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल द वैल्यूज. ओके, क्लियर है? ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा. अदरवाइज इसको देखते हैं कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस टू, एंड टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, y माइनस टू विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, एंड क्यूब ऑन बोथ साइड्स. तो y माइनस टू होल क्यूब, this is equal to x. This is basically our inverse function, which is f of y is equal to y minus 2 whole cube. And you can clearly see that since this is y minus 2 whole cube, y can take all the values. Okay, y will be element of R. Next question. Find the range of the function fx is equal to mod of x upon x. Now since x is in the denominator, so x cannot be equal to 0, can take all the real values except 0, but 0 नहीं होगा. So either, since this is a modulus, दो ही cases बनेंगे हमारे. First when x is a positive value, second when x is a negative value. So if x is positive, modulus sign open होगा हमारा plus sign के साथ में. So this will be, function will be plus x upon x, which will be equal to plus 1. If x is negative, then this will open with the minus sign, यानी minus x upon x, this will be equal to minus 1. So there are two values possible for fx, plus 1 and minus 1. So only two values, minus 1 and plus 1. This will be our range. ऑप्शन डी आंसर होगा. बी मार्क नहीं कर देना है, क्योंकि बी का मतलब क्या हुआ? ऑल वैल्यूज बिटवीन माइनस 1 एंड 1. वो थोड़ी आंसर है हमारा. हमारा आंसर ऑप्शन डी, only minus 1 and 1. And D will be the answer. Okay, clear? Next question. For the function fx is equal to 3 minus square root of x minus 5, range का क्या होगा वैल्यू? 3 minus square root of x minus 5. Now square root of x minus 5, this is always greater than equal to 0. But minus square root of x minus 5 multiplied by minus 1, so minus square root of x minus 5, this will always be less than equal to 0. Now add 3 on both sides, so 3 minus square root of x minus 5, this will always be less than equal to 3. So range of the function क्या आ जाएगा? This will be between minus infinity and 3. Option C will be the answer. Okay. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If a function's domain is from minus infinity to 3 and its range is from 5 to infinity, which of the following could be the function? So our function is defined from the set minus infinity to 3 to set 5 to infinity. So what could be that function? Domain basically हमारा है from minus infinity to 3 and codomain is from 5 to infinity. A range is from 5 to infinity. ठीक है, रेंज है हमारा 5 to infinity, ये कोडोमेन नहीं है. ठीक है, रेंज इज फ्रॉम 5 to infinity, तो विच द फॉलोइंग कुड बी द फंक्शन. अब पहला फंक्शन है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड प्लस 5. तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या आ जाएगा? इस केस में डोमेन क्या होगा? माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड प्लस 5. तो x कैन टेक ऑल द वैल्यूज. और रेंज क्या होगा? इफ x कैन टेक ऑल द वैल्यूज, सो माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर्ड,
x minus 3 whole squared will be always greater than equal to 0. तो minus 2 times x minus 3 whole squared नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, और देन वी आर एडिंग 5. सो बेसिकली दिस fx विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 5. लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, 5 ऐड किया, लेस देन इक्वल टू 5 होगा. तो अवर रेंज इन दिस केस विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 5 इंक्लूडिंग 5. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी की बात करते हैं. ऑप्शन बी एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स प्लस 5. नाउ डोमेन क्या आएगा? 3 माइनस एक्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 3. x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 3. दिस इज अवर डोमेन. तो डोमेन तो हमारा करेक्ट आ रहा है. सेकंड केस रेंज क्या होगा? रूट ऑफ एक्स माइनस 3 दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एड 5, तो रेंज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि ऑल वैल्यूज फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी. डोमेन इज करेक्ट, रेंज इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. ऑप्शन सी एफ एक्स इक्वल टू टू पावर एक्स माइनस 3 प्लस 5. नॉट टू टू पावर एक्स माइनस 3 हो या टू टू पावर एक्स हो या टू टू पावर एक्स प्लस 5 हो, as long as this is 2 to the power something, so this will always be a greater than 0, always positive, greater than 0, and we are adding 5, so this will always be greater than 5. ठीक है. डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज हमारा हो जाएगा फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी, बट ओपन ब्रैकेट एट 5, ओपन ब्रैकेट एट 5. लास्ट केस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 5. what will be the domain of this function? Since denominator में है x minus 3, so x cannot be equal to 3. x cannot be equal to 3. ठीक है. और 1 upon x minus 3 क्या होगा? इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 0. ये 0 कभी नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज लेगा. अपार्ट फ्रॉम 0 ये सारी की सारी वैल्यूज लेगा. और फिर इसमें 5 ऐड कर रहे हो, सो 1 upon x minus 3 प्लस 5, दिस विल नॉट बी 0 प्लस 5, यानी कि 5 नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज लेगा. तो अवर रेंज इन दिस केस विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी, और बेसिकली ऑल रियल वैल्यूज minus 5. This will be our range for our last function. Clear? ठीक है. और चाहते हो सेकंड मेथड अप्लाई करके भी इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे, तो अपने एंड पे तुम प्रैक्टिस कर लेना सेकंड मेथड अप्लाई करके भी. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या बातें समझ पा रहे हो सारी की सारी? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. First thing, what is the domain of this function? Now since x minus 1 is in the denominator, so x will not be equal to 1, or x can take all the real values except 1. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. fx will be equal to x square minus 1 x plus 1 into x minus 1 upon x minus 1. Now x minus 1 can be cancelled out, बट जब कैंसिल आउट करोगे तो हमेशा याद रखना है कि जो वैल्यू तुम कैंसिल आउट कर रहे हो उसको पहले हटाना जरूर है, बिकॉज एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर से रिमूव कर रहे हो उससे पहले ये ध्यान रखना है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1. तो नाउ एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1. एफ एक्स बिकम्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बट प्रोवाइडेड एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे जो एफ एक्स की वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी. एक्स इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि एफ एक्स वो वैल्यू कभी भी अटेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज एफ एक्स अवर ओरिजिनल function is not equal to x plus 1. This is not equal to x plus 1. ठीक है. This is our complete original function, that fx is equal to x plus 1 but for all values of x not equal to 1. ठीक है. This is not the same as the other function. Let us say we define function gx equal to x plus 1. Now in this case x can take all real values, but these two are not equal. These are not the same. Our fx is equal to x plus 1 provided x is not equal to 1, and gx is equal to x plus 1 for all real values of x. So these two are different. क्या ये बात समझ पा रहे? ठीक है. तो पहले वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं. हमारा रेंज क्या आएगा इन दिस केस? x plus 1 कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज
all real values except the value that it will be taking at x equal to 1. यानी कि fx will be taking all real values except क्या वैल्यू आएगा at x equal to 1, x equal to 1 पे x plus 1 will be equal to 2, all real values minus 2, 2 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज रहेगा रेंज में. आंसर हमारा विल बी ऑप्शन ए, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन फ्रॉम 2 to infinity. This will be our answer. Is that clear? ठीक है. So these are all the questions that we discussed in this session. और अभी हमने बेसिक क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे कंप्लीट कर लिए, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज. एंड आई बिलीव कि सेशन में चीज़ें समझ में आई होंगी, अप्रिशिएट कर पाओगे इसको. मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल in the comments section and like this session if you've really understood the concept. Okay, इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में some more good questions. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.